Hello friends, today I am going to start with 12 physics lecture number 7 rotational dynamics. So students, in last lecture we have completed with theorem on parallel axis, theorem on the perpendicular axis and rolling motion. So today in this video we are going to see about the application of the moment of inertia. With the help of today video we will complete the first chapter rotational dynamics. Okay, starting with the topic application of the moment of inertia. Moment of inertia. So in this applications we'll study some applications. The first application which we are going to see is the moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through a center of masses of the rod and perpendicular to its length. So first application is the moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through the center of mass of the rod and perpendicular to its length. Perpendicular to its length. Okay, so this is our rod having some mass. Okay, it is the axis of the rod passing through center of the mass of the rod. So this is our center line of the rod. Here we have to calculate the moment of inertia passing through this center of the rod. So this rod have some length, that is L. So it is divided from the center of mass, so this distance will be L by 2. Let us consider small mass of this rod. We have to integrate and we have to calculate, therefore we are considering the small mass of the rod. हम छोटा मास कंसिडर करते हैं, मतलब ये रॉड का सिर्फ हम इतना मास कंसिडर करते हैं. Okay, this mass has some distance, that is small distance, that is dx distance, and mass having is dm of mass. Okay, so remember the formula will be what? ml square by 2l. How it is possible we will see and we will prove this. Okay, so formula for the moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through a center of mass of the rod and perpendicular to its length is ml square by 2l. How it comes we'll see. So I am proving this, that is how the IC is equal to ml square by 2l. IC means what? Moment of inertia of a rod passing through the center. Okay, sometimes they in examination they ask the proof for 2 to 3 marks, so remember, please understand this properly. Okay, so for rod, linear mass density, this you have studied in 11th standard. Linear mass density means small m, that is capital M divided by the length. Okay, so small m means what? Linear mass density, which will be equal to the mass of the rod divided by the length of the rod. तो linear mass density क्या हो गया दोस्तों? Is m by l. So linear mass density will be small m is equal to capital M by l. Now we have taken the small mass of a distance dx. Yes or no? So for dx element, mass is m upon l into dx. Understood? M upon l into dx is your linear mass density, small m. Okay, for small element, this it will be m upon l into dx. Therefore moment of inertia is given as di
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आपको मालूम है ना। तो डी आई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम क्या है मेरा, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, स्मॉल एम क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, वो क्या होता है कैपिटल एम अपॉन एल, मास अपॉन लेंथ ऑफ दैट रॉड। बट वी हैव कंसिडर योर स्मॉल अमाउंट ऑफ मास विच डिस्टेंस डी एक्स. Due to this, the linear mass density will be what? M upon L into dx for dx element. Okay. Now, moment of inertia will be what? Mr square or not? So M क्या है? M upon L into dx. di small moment of inertia निकाल रहा हूँ ये small element के लिए. So di will be M upon L into dx into distance is how much? X. Yes or no? X. That is x square. R square. I is equal to mr square formula होता ना? I is equal to एम आर स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है. तो डी आई विल बी वॉट, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. सो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन both side. So when we will integrate, so integration of di is equal to integration of m upon l into dx into x square. Okay, so integration of di, integration of d theta is what, theta, yes or no. So integration of di will be what, I. Understood? I will be m upon l integration of x square into dx. Okay, x square into dx, m upon l is constant, so therefore we have taken outside of the integration. So m upon l into integration of x square into dx. So you all know that integration of x raised to n is what, x raised to n plus 1 upon n plus 1. So this will be what, I will be equal to ml into x raised to n plus 1 means what, x raised to 2 plus 1 that is 3 by 2 plus 1 that is 3. सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी कुछ होगा ना. लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, देखो ये पूरा लेंथ ऑफ द रॉड है ना. अब ये लेंथ ऑफ द रॉड को मैंने डिवाइड कर दिया L/2 और L/2 में, तो इनिशियल भी L/2 होगा, फाइनल भी L/2 होगा, मतलब अपर लिमिट भी L/2, लोअर लिमिट भी L/2. तो यहाँ पे क्या जाएगा, L/2 अपॉन अपर लिमिट L/2, लोअर लिमिट L/2. अब एक्स क्यूब की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, L/2. L/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट में फिर से बता रहा हूँ क्यों आया, क्योंकि ये जो रॉड है उसका टोटल लेंथ क्या है, L. तो उस लेंथ को मैंने जो डिवाइड किया L/2 और L/2 वही मेरा लिमिट्स होगा यहाँ पे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इट इज L/2. मैंने यहाँ पे लिख लिया है L/2. अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एक्स क्यूब की जगह पे L/2. So friends, when I will substitute L/2 in the place of the x, so what I will get, I will be equal to m upon 3l. Okay, why? My equation was what? My equation was I is equal to m upon l into x cube by 3, upper limit L/2 and lower limit L/2. When I will substitute, I will get the equation as a I is equal to m upon 3l into L upon 3 the whole cube plus, sorry, L upon 2, L/2 I am substituting, no, so L/2 into whole cube plus L/2 into whole cube. Okay, so what will be this equation, I will be equal to m upon 3l, capital M upon 3l into L cube upon 8, 2 cube is what, 8, no, here also L cube upon 8. So what will be your equation, I will be equal to m upon 3l, that is 8l cube plus 8l cube divided by 64. Any problem? Okay, so m upon 3l 16l cube upon 64. Okay, so 16 1 is 16, 16 4 is 64. So I will be what, ml cube upon 4 3 is 12l. Okay, this l and this l cube will cancel and it will be l square. So I will be what, m into l square by 12. This is your moment of inertia passing through the center of the rod. So दोस्तों हमने किस तरह प्रूव किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड, उसका फॉर्मूला क्या था, IC इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12. तो हमने लीनियर मास डेंसिटी लिया, लीनियर मास डेंसिटी इज व्हाट, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m फॉर स्मॉल मास, फॉर स्मॉल एलिमेंट. सो स्मॉल m will be what, linear mass density will be what,
m upon l into dx. So moment of inertia will be what? Di is equal to m upon l into dx into x square. So integrating above equation what we will get? I is equal to integration लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या लेना है, क्योंकि लेंथ जो है उसको डिवाइड कर दिया l/2 और l/2 से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से पास हो रहा है वो l/2 डिस्टेंस से पास हो रहा है. Okay, so l/2 upper limit, l/2 lower limit, that will be x square into dx. So it will be x cube upon 3. Substituting x as a l/2. So what you will get final equation as a m upon 3l into l/2 the whole cube plus l/2 the whole cube. So m upon 3l into substitute कर दोगे तो l cube upon 8 मिल जाएगा. Okay, so by substituting and simplifying this, we will get moment of inertia passing through the center of the rod is ml square by 2l. Okay, this was our first application. Now moving on to the second application. So what is our second application? Moment of inertia of a thin uniform rod about point at its edge. Moment of inertia of a thin uniform rod above a point at its edge, about a point at its edge. ओके, इसका मतलब क्या, ये रॉड है मेरा, हमने थोड़ी देर पहले अब कहाँ पे कैलकुलेट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेंटर में कैलकुलेट किया था. अब हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? देखो पढ़ लो. सेकंड एप्लीकेशन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट ए पॉइंट एट इट्स एज. मतलब ये सेंटर से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी जा ही रहा है, वो कितना जा रहा है? ml स्क्वायर बाई 12. दोस्तों इतना जा रहा है कि नहीं, ये आपको मालूम पड़ गया पहले एप्लीकेशन से. अब यहाँ पे मुझे ना ये एज पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कैलकुलेट करना है. तो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज ए ई पॉइंट, दिस पॉइंट एज ए ओ पॉइंट. सो आई हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दी आई ओ. ओके, अगेन दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट दोस्तों? l/2. ये डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? l/2. टोटल डिस्टेंस क्या था? l. कन्फ्यूजन नहीं होना है, बहुत ईजी है. और एग्जाम में ये दोनों में से कोई एक पूछ सकते हैं 2 to 3 मार्क्स के लिए. पहले हमने सेंटर में देखा, हमें क्या मिला? ml स्क्वायर बाई 12. अब हम एज की ओर देखते हैं तो हमें कितना मिलेगा? मैं पहले वैल्यू बताता तो इसका हमें कितना मिलेगा? ml स्क्वायर बाई 3. वो किस तरह आएगा हम इसको प्रूफ करके आपको अभी बता रहे हैं. ओके, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम. बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूले सारे दे दिए, पर इसको थोड़ा एप्लीकेशन में कुछ प्रूफ भी आपको याद रखने हैं. ठीक है, सो what is your formula for the parallel axis theorem? Remember that formula. That formula was the moment of inertia passing through about an axis is equal to sum of the moment of inertia passing through the center, okay, IC, plus product of the masses and square of perpendicular distance between two parallel axes, that is mh square. Okay, this was your formula. Moment of inertia passing through about an axis is equal to summation of moment of inertia passing through the center plus product of the masses and square of perpendicular distance from the axis of rotation between two parallel axes. Okay, now this was the formula for the parallel axis theorem. So we will apply here. So this is our rod, yes or no? So moment of inertia passing through a center, what is the formula? ml square by 12. So I have to calculate from the edge, no, about an axis. This axis is about an axis and this axis is a center axis. So we have studied in parallel axis theorem, these two axes are parallel, yes or no? In parallel axis theorem also, what was the statement? Moment of inertia passing through about an axis is equal to sum of the moment of inertia passing through a center plus product of the masses and square of perpendicular distance between two parallel axes. So moment of inertia passing about an axis, वही तो हमें कैलकुलेट करना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के एज से कितना है? सो IO विल बी व्हाट? IC कितना है दोस्तों? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू एच कितना है यहाँ पे दोस्तों? l/2. यहाँ पे h मीन्स व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दैट इज हाउ मच? l/2 और नॉट, सब्स्टिट्यूट l/2. सो व्हाट यू विल गेट? IO विल बी व्हाट? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4. yes or no? any problem? okay, so IO will be what? 4 ml square plus 12 ml square divided by 12 4 is how much? 48. So IO will be what दोस्तों? that is 16 ml square divided by 48. 16 1 16, 16 3 is 48. So IO will be what? ml square by 3. देखो तो कितना ईजी है दोस्तों, 2 मार्क्स के लिए पूछ लेते, फिर भी बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाते. ठीक है, बहुत ईजी है. ये रॉड है, उसके एज से मुझे निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है. सेंटर से मालूम है कितना? ml स्क्वायर बाय
12। और ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये की स्टार पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये फॉर्मूलेज जो है आपको याद रखना है। सेंटर से ml²/12 होता है, एज से ml²/3 होता है। अगर प्रूफ पूछेंगे तो फॉर प्रूफ यू हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फॉर सेंटर इट इज ml²/12 एंड फ्रॉम एजेस इट विल बी ml²/3। हाउ इट कम्स वी हैव प्रूव्ड। ओके, नाउ फ्रेंड्स मूविंग ऑन टू द थर्ड एप्लीकेशन, वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन हमने कहाँ देखा, रॉड के बीचों बीच, मतलब सेंटर ऑफ द रॉड। दूसरा एप्लीकेशन में कहाँ देखा, रॉड का एज की तरफ। अब हमें देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिटवीन सेंटर ऑफ द एक्सिस, मतलब सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रॉड एंड द एज ऑफ द रॉड, मतलब उन दोनों के बीच में का। मतलब थर्ड एप्लीकेशन इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नीट और जेई के लिए, ध्यान से नोट्स अच्छे से बनाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म, आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूलेज दिए, हमें समझना है किस तरह आता है। यूनिफॉर्म रॉड अबाउट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन सेंटर ऑफ मास, मैंने बताया आपको सेंटर ऑफ मास एंड इट्स एज। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में वो जो फॉर्मूले का डायरेक्ट एक चार्ट बना के दे दिया है, यहाँ पे रॉड का उन्होंने लास्ट में दिया है, पर हम रॉड को पहले पढ़ा रहे, तो कंफ्यूज नहीं होना, हम सारे टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं आपका। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट ए पॉइंट मिडवे बिटवीन दी सेंटर ऑफ मास एंड इट्स एजेस। मतलब क्या, ये रॉड है दोस्तों मेरा, ये रॉड का सेंटर लाइन है और ये रॉड का सेंटर ऑफ द एक्सिस है, मतलब आईसी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है यहाँ पे कितना होता है दोस्तों, ml²/12। और यहाँ पे कितना होता है एज में दोस्तों, ई पॉइंट ओ पॉइंट, दैट इज IO विल बी ml²/3। अब दोस्तों हमें इस पॉइंट में कैलकुलेट करना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कितना होगा। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट एज ए IC नहीं बोलेंगे इसको, ID ले लो, ठीक है, नहीं तो सिर्फ I भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे ID कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। ओके, मिडवे IM ले लो, मिडवे ना IM ले लो, ठीक है। ये IM हमारा कितना होगा हमें ये कैलकुलेट इधर करना है। सेम डायग्राम सेम, यहाँ पे कितना दोस्तों डिस्टेंस होगा, L/2 डिस्टेंस होगा। यहाँ पे दोस्तों कितना डिस्टेंस होगा, L/2, पर ये L/2 फिर से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये डिस्टेंस होगा आपका L/4 और ये डिस्टेंस होगा आपका L/4। Understood? Okay, so now remember this formula will be what, moment of inertia passing through midway, that Im will be 7 ml²/48। ये किस तरह आता है हम इसको प्रूफ करेंगे दोस्तों, अभी तुरंत प्रूफ करेंगे। बट ये फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द मिडवे बिटवीन सेंटर ऑफ द एक्सिस एंड द एज ऑफ द रॉड इज 7 ml²/48। हाउ इट कम्स विल प्रूफ नाउ, लिसन केयरफुली। सो व्हाट इज अवर प्रूफ, अगेन वी विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों यहाँ पे मैं दोस्तों पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे से पैरेलल है। सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोस्तों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, IO इज इक्वल टू IC प्लस ML², यस और नो, mh², यही तो फॉर्मूला ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। अब मुझे यहाँ पे दोस्तों निकालना है, तो इसमें आपको सेंटर में तो मालूम है कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ml²/12। सो यहाँ पे IM विल बी ml²/12। IO मीन्स व्हाट, अबाउट एन एक्सिस, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे हमने IM लिया ना, IM पॉइंट लेना, हम M लिख लिए, ml²/12 प्लस M इंटू H। दोस्तों कितना है यहाँ पे, सेंटर ऑफ एक्सिस से, ये सेंटर है ना, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है दोस्तों, L/4 डिस्टेंस है, तो L/4 दी होल स्क्वायर। ओके, वहाँ पे एज में L/2 डिस्टेंस था सेंटर ऑफ एक्सिस से, तो L/2 लिया, यहाँ पे L/4 डिस्टेंस पे एक्सिस जा रहा है, तो L/4 ले लिया। सो IM विल बी व्हाट, ml²/12 प्लस ml²/16, अगेन सेम, दैट विल बी 16 ml² प्लस 12 ml² डिवाइडेड बाय 160 प्लस 32, दैट इज 192 आई थिंक, है कि नहीं। 12 16 जा 12 10 जा 160 एंड 16 2 जा 32, तो 192। सो इट विल बी
28, 16 plus 12 is 28 ml square divided by 192. It will be what? 4 के टेबल से जाएगा. 4 4 is 16, 4 8 is 32 and 4 7 is 28. That will be 7 ml square by 48. That is moment of inertia passing through the midway of the rod. दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट देने वाला हूँ. हमने तीनों में क्या कैलकुलेट किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एज ऑफ द रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू मिड वे ऑफ द रॉड. मैं यहाँ पे नोट पॉइंट दे रहा हूँ, इसको नोट अच्छे से मेंटेन करना. ये रॉड है ना दोस्तों, ये इसका सेंटर है, ये इसका एज है, ये इसका मिडल है. यहाँ पे सेंटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 और यहाँ पे ml स्क्वायर बाय 3 और यहाँ पे 7 ml स्क्वायर बाय 48. ठीक है, याद रखना इसको. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ml स्क्वायर बाय 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एजेस ml स्क्वायर बाय 3 एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू मिडवे 7 ml स्क्वायर बाय 48. दिस 3 फॉर्मूलाज प्लीज रिमेंबर. ओके, और ये किस तरह आया वो भी मैंने आपको प्रूफ में एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज क्यूब. ये आपको प्रूफ नहीं पूछते एग्जाम में, आपको सिर्फ इसके फॉर्मूलेज याद रखने हैं नीट और जेई के लिए. ये मेरा क्यूब है दोस्तों, इसमें मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये डिस्टेंस इसका बी डिस्टेंस है दोस्तों, और दोस्तों ये डिस्टेंस मेरा कितना है? एल डिस्टेंस है दोस्तों. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा याद रखना है, दैट इज 1/12 m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फॉर्मूला याद रखना है. ये किस तरह आता है? सेम उसी तरह प्रूफ है, पर एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछते. इसको आपको नीट और जेई के लिए इसके फॉर्मूलेस को याद रखना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए क्यूब कितना होगा? 1/12 m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन, फिफ्थ एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग. यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्यूब. ओके, सॉरी मैंने थोड़ा लेट बता दिया. ओके ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो फिफ्थ एप्लीकेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग. अब रिंग आप पहनते हो ना, बच्चे लोग बहुत रिंग पहनते हैं आजकल, 11-12 के बच्चे. थिन रिंग हॉलो सिलेंडर, कड़ा बोलते हैं ना हम हाथों में जो पहनते हैं, उसी को रिंग कंसिडर करो. सिलेंडर अबाउट एन परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. देखो दोस्तों, हम जो भी अभी रिंग और डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, एक तो सेंटर के ऊपर पढ़ेंगे और एक डायमीटर के ऊपर पढ़ेंगे. तो अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हमारा है वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग हॉलो सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर थ्रू इट्स सेंटर. मेरे पास एक रिंग मौजूद है दोस्तों, ये मेरा जो रिंग है, ये मेरा क्या है दोस्तों? रिंग है. अब यहाँ पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है सेंटर की ओर. ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बीच में निकालना? ये रिंग कंसिडर किया, इसका सेंटर है. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग हॉलो सिलेंडर अबाउट एन परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. हॉलो सिलेंडर क्यों लिया मालूम है दोस्तों? जो अपना ये है ना वायर, इलेक्ट्रिकल वायर, सिलेंडर, ओके, उसको रिंग फॉर्म में कनेक्ट करो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग हॉलो सिलेंडर अबाउट एन परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. मतलब ये सेंटर है ना रिंग का, पास कर दिया यहाँ पे. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी हमें कैलकुलेट करना है. तो ये रेडियस होगा उसका आर. तो हमने जैसे रॉड पे छोटा अमाउंट ऑफ मास कंसिडर किया, यहाँ पे भी दोस्तों छोटा अमाउंट ऑफ मास कंसिडर कर देते हैं. ठीक है, दिस इज अवर डीएम मास, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास. ओके, अब दोस्तों देखो ये रिंग है, तो इसमें हम ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों क्या होता है? एम आर स्क्वायर. यस और नो? तो ठीक है, यहाँ पे डी आई होगा ना, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे. स्मॉल एलिमेंट डी आई विल बी वॉट? डी एम इंटू आर स्क्वायर दोस्तों, है कि नहीं? ओके, सो दिस इज अवर डी आई. सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर. यस और नो? सो इट विल बी वॉट? आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम.
I will be what? M into R square. This is your moment of inertia of a thin ring, hollow cylinder about a perpendicular axis passing through a center. That is what? IC is equal to what? M into R square. वही moment of inertia होता है ना फॉर्मूला सेम. तो याद रखना है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr स्क्वायर, वो थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए भी दोस्तों वही है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ एप्लीकेशन. सिक्स्थ एप्लीकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग अबाउट एन डायमीटर. मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना दोस्तों, जो भी हम रिंग और डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, एक सेंटर के ऊपर पढ़ेंगे और एक डायमीटर के ऊपर पढ़ेंगे. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग अबाउट डायमीटर. ठीक है, फिर से वही रिंग कंसिडर करो. ये रिंग है मेरा, ठीक है. अब ये रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ द एक्सिस ये था, ठीक है. अब ये परपेंडिकुलर एक्सिस देखा था हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, उसमें हम इसको क्या कंसिडर करें? लेट अस कंसिडर आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू आई एक्स. ये क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू जेड, आई जेड. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दी वाई, ठीक है. और ये सेंटर एक्सिस से पास होगा, ठीक है. ठीक है, ये जेड एक्सिस भी कंसिडर कर सकते हैं. इसको नहीं लो जेड एक्सिस, इसको भी आप जेड एक्सिस, आई जेड इज इक्वल टू आई सी. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दी सेंटर. ओके, इसको भी आप जेड एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो नाउ फॉर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू डायमीटर, मतलब क्या दोस्तों? आई जेड निकालना है मुझे ये डायमीटर के थ्रू. अंडरस्टूड? तो इसमें बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे. कौन सा एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है दोस्तों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू प्लेन लैमिना आई जेड इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू दैट लैमिना. यस और नो? दैट विल बी आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है कि नहीं? देयरफॉर आई जेड यहाँ पे दोस्तों क्या है? आई सी के बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? और यहाँ पे आई एक्स और आई वाई इज इक्वल टू आई जेड. मैंने आपको बताया था कौन सा भी एक्सिस आप जेड ले सकते हो, कौन सा भी एक्सिस आप वाई ले सकते हो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों जगह पे सेम ही है. अंडरस्टूड? सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. सो आई जेड इज इक्वल टू आई सी, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई डी. अंडरस्टूड? सो इट विल बी वॉट? आई सी विल बी वॉट नाउ? आई एक्स प्लस आई वाई ना, है कि नहीं? और आई एक्स प्लस आई वाई इज आई जेड. तो आई जेड इज वॉट? आई सी. तो आई सी विल बी वॉट? ix plus ix plus iy which will be equal to what? id only, no? Ix is equal to iy is equal to iz is equal to id. So it will be id plus id. Understood? So ic will be what? 2 times of id. ic will be what? 2 times of id. Yes or no? So id, moment of inertia passing through diameter ना, that will be ic by 2. और ic मुझे क्या मिला दोस्तों? mr स्क्वायर मिला है कि नहीं? सो इट विल बी वॉट? id विल बी वॉट? mr स्क्वायर बाय 2. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रिंग पासिंग थ्रू डायमीटर इज mr स्क्वायर बाय 2. अंडरस्टूड? तो सेंटर में क्या है दोस्तों? mr स्क्वायर. कितना है? mr स्क्वायर. और डायमीटर में कितना है दोस्तों? mr स्क्वायर बाई 2. तो ठीक है, मैं एक और बार फिर से आपको डायमीटर का एक्सप्लेन करा देता हूँ. ये मेरा रिंग है दोस्तों. अब मैंने सेंटर के लिए कैलकुलेट कर दिया है mr स्क्वायर, ठीक है. अब डायमीटर का जब मैं कैलकुलेट करूंगा इस कंडीशन में आई जेड इज इक्वल टू आई सी है और आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड है. एक्सिस सेम है विच इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ दैट एक्सिस. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द डायमीटर. आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मालूम है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. अब मैंने बताया कि आई जेड इज इक्वल टू आई सी है दोस्तों, ठीक है. और आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई डी है. मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. आई जेड की जगह पे आई सी लिखो और आई एक्स आई डी हो गया ना, सब इक्वल है ना. और आई वाई इज इक्वल टू आई डी, 2 टाइम्स ऑफ आई डी. तो निकालना क्या दोस्तों? आपको आई डी निकालना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द डायमीटर. दैट विल बी आई सी बाई 2 विच विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2. दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग हॉलो सिलेंडर पासिंग थ्रू द डायमीटर. ओके, सो सेंटर में कितना है दोस्तों? mr स्क्वायर. और डायमीटर में कितना है? mr स्क्वायर बाय 2. नाउ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द 7th एप्लीकेशन. व्हाट इज अवर 7th एप्लीकेशन फ्रेंड्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट टू इट्स प्लेन.
मोमेंट ऑफ inertia of a thin ring or hollow cylinder tangent in its plane। ठीक है, वापस दोस्तों ये थिन रिंग है मेरा, ये सेंटर है, ठीक है, थिन रिंग है, इसका सेंटर है, और सेंटर से ये भी सेंटर एक्सिस है इसका। अब यहाँ पे आपको मालूम है डायमीटर वाला एक्सिस है, हमने थोड़ी देर पहले डायमीटर प्रूफ किया। अब टेंजेंट मतलब क्या, जो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल से पास होगा, मतलब ये वाला लाइन है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको तो मालूम है आई सी इज इक्वल टू आई डी था, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द टेंजेंट। ओके, सो लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस एज ए एच, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एच था ना, विच विल बी इक्वल टू आर। ओके, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कितना बनेगा दोस्तों, किस तरह आएगा, इसका फॉर्मूला जो आएगा IO विल बी 3/2 mr²। दोस्तों 3/2 mr² आएगा, किस तरह आएगा देखते हैं। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू अबाउट एन एक्सिस, मतलब ये वाला एक्सिस, विच विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर। वो सेंटर एक्सिस किसके बराबर है दोस्तों, डायमीटर के एक्सिस के बराबर है, डायमीटर है ना सर्कल का। ओके, सो IO इज इक्वल टू IC प्लस m इंटू h² बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और रिंग का IC आपको मालूम है mr² होता है, सेंटर से पास होने वाला एक्सिस। तो सब्स्टिट्यूट करो, IO विल बी mr²। हाँ, IC इज इक्वल टू, अब ID भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, IC इज इक्वल टू ID है ना, और ID दोस्तों होता क्या है mr²/2 ना, मतलब आप इसको mr²/2 सब्स्टिट्यूट करना है। क्यों, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे देखो, IO विल बी वॉट, ID प्लस m इंटू h²। क्यों, यहाँ पे IC इज इक्वल टू ID है, तो IO दोस्तों क्या हो जाएगा m इंटू r²/2 प्लस mh², और यहाँ पे h दोस्तों क्या है, r के बराबर है ना, तो m इंटू r²। सो इट विल बी वॉट दोस्तों, mr² प्लस 2mr² डिवाइडेड बाई 2, तो ID विल बी वॉट 3/2 mr²। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, sorry IO, moment of inertia passing through a tangent of this ring is 3/2 mr²। ठीक है, अंडरस्टूड। किस तरह आया टेंजेंट का, क्योंकि डायमीटर है वो सेंटर एक्सिस से पास हो रहा है। IC इज इक्वल टू ID, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है, और IC इज इक्वल टू ID है, ID का फॉर्मूला आपको मिला mr²/2 प्लस mr², उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 3/2 mr² हमें मिल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू रिंग विच इज टेंजेंटली पासिंग। ओके, so moment of inertia of a thin ring hollow cylinder about a tangent to its plane। okay, now again thin ring, this is my thin ring, सेंटर से पास हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC, और यहाँ पे एक प्लेन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रहा है, लेट अस कंसिडर दैट इज IO। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज H इज इक्वल टू R। तो सेम फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, IO इज इक्वल टू IC प्लस mh²। दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, IC आपको मालूम है कितना होता है दोस्तों, mr² ना, दैट विल बी, IC कितना था दोस्तों, mr² प्लस m इंटू h², दैट इज m इंटू r²। सो IO कितना होगा दोस्तों, 2mr²। फॉर्मूला दोस्तों, सारे फॉर्मूले याद रखो, जो भी रिंग है, हॉलो सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से कितना होता है दोस्तों, सेंटर से कितना होता है mr², डायमीटर की ओर जाओ तो कितना होगा mr²/2, टेंजेंट की ओर जाओ तो कितना होगा 3/2 mr², टू इट्स प्लेन, टेंजेंट टू इट्स प्लेन, और एक फॉर्मूला कितना आया 2mr²। ये सारे फॉर्मूलेस दोस्तों कहीं पे नोट बना के लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट इज आवर रिंग के ऊपर अभी कंसेप्ट हो। सो आवर 9th एप्लीकेशन फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए सेंटर। ये मेरा सॉलिड सिलेंडर है फ्रेंड्स, सॉलिड सिलेंडर में इसका रेडियस है ये R दोस्तों, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से कितना आता है दोस्तों, दैट इज mr²/2।
2, दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर। मतलब जो रिंग का जो डायमीटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रहा था वो सॉलिड सिलेंडर में सेंटर से जाता है, और रिंग का सेंटर में क्या दोस्तों, एम आर स्क्वायर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 10th एप्लीकेशन। अब सेंटर की ओर हो गया दोस्तों, तो 10th एप्लीकेशन में हम डायमीटर में देखेंगे। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of solid cylinder about an axis passing through its center हो गया। अब डायमीटर passing through its diameter, सेम डायग्राम। अब डायमीटर में आपको मालूम है, डायमीटर में मतलब ये पूरा मैं कैलकुलेट करना है ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोस्तों, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। उस कंडीशन में आई जेड दोस्तों किसके बराबर है, सेंटर के बराबर है, और आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी है ना, आई जेड इज इक्वल टू आई डी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आई सी विल बी 2 टाइम्स ऑफ आई डी आया था हमें पिछला फॉर्मूले में, रिंग में भी। तो आई डी दोस्तों क्या होगा, आई सी बाई 2 ना, सेम कंसेप्ट जो रिंग का कंसेप्ट था। यहाँ पे आई सी कितना आया था दोस्तों, सॉलिड सिलेंडर में कितना आया है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार हॉलो और सॉलिड में, सॉरी फॉर दैट। सो आई डी कितना आएगा यहाँ पे, आई सी बाई 2। आई सी सॉलिड सिलेंडर में कितना है, एम आर स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, दैट इज आई डी विल बी वॉट, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2। ID passing through diameter, moment of inertia passing through diameter in solid cylinder is mr square by 4। दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बहुत इजी है, अगर आपको एक बार समझ में आता है तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे भी थ्योरम अप्लाई किया गया है, ID जो डायमीटर है वो IC बाई 2 होता है, mr स्क्वायर IC रिंग में होता है, सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2। रिंग मतलब क्या, हॉलो सिलेंडर फ्रेंड्स। हॉलो सिलेंडर में सेंटर से पास होने वाला कितना होता है, एम आर स्क्वायर। डायमीटर से पास होने वाला कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। बट इन सॉलिड सिलेंडर सेंटर से पास होने वाला एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और डायमीटर से पास होने वाला फ्रेंड्स एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। ओके, नाउ 11th एप्लीकेशन, जैसे हमने रिंग में देखा, रिंग में कहाँ से देखा हमने, टेंजेंट पास होता है ना, टेंजेंट एज से पास हो रहा था, एक प्लेन से पास हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी एक टेंजेंट पास होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर टेंजेंट इन इट्स प्लेन। मैंने क्या बोला, 11th एप्लीकेशन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर टेंजेंट इन इट्स प्लेन। मतलब क्या दोस्तों, जो रिंग में हमने देखा था एज से जो टेंजेंट जा रहा था, यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर में भी जाएगा, सेम कंसेप्ट। ठीक है, ये रेडियस है, ये सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ पे जो टेंजेंट जाएगा, टेंजेंट जहाँ से जाने वाला है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इस कंडीशन में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये आपके सीबीएसई के बुक में अवेलेबल है, जो हम नीट और जेई के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट बोर्ड में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है इसको, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO विल बी व्हाट, IC प्लस MH स्क्वायर। ओके, सो IO दोस्तों क्या है, ये जो है अबाउट एन एक्सिस जो पास हो रहा है, अबाउट एन एक्सिस जो पास हो रहा है वो मेरा दोस्तों क्या है, IO। अब ये IC जो है वो ID के बराबर है, IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर इज ID के बराबर है, और यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर में हमें क्या मिला है, mr स्क्वायर बाई 4, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। सो IO विल बी वॉट, ID प्लस m इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि H इज इक्वल टू आर है ना, ये H इज इक्वल टू आर है, तो इस कंडीशन में IC विल बी mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, दैट विल बी IC विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस 5mr स्क्वायर बाई 4।
okay, sorry, 4 mr square, 4 1s are 4 ना, so IC will be what, 4 plus 1 5 mr square by 4. मुझे आंसर याद था इसके लिए मैं बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं. किस तरह आता है ये, जो ID है वो किसके इक्वल है, IC के इक्वल है. तो ID क्या है दोस्तों, mr स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे प्लस mr स्क्वायर. तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर प्लस 4 mr स्क्वायर बाई 4, दैट इज 5 mr स्क्वायर बाई 4. दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर टेंजेंट इन इट्स प्लेन. टेंजेंट इन इट्स प्लेन जब दोस्तों बोलेंगे ना तो क्या आएगा, 5 mr स्क्वायर बाय 4. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर टेंजेंट टू इट्स प्लेन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर टेंजेंट टू इट्स प्लेन. मतलब क्या दोस्तों, सेम इन इट्स प्लेन में और टू इट्स प्लेन में फर्क यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सेम r इजिकल टू एच होगा और यहाँ पे सेंटर से पास होने वाला या टेंजेंट टू इट्स प्लेन से पास होने वाला है, ठीक है. तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO इजिकल टू IC प्लस MH स्क्वायर. और यहाँ पे दोस्तों IC क्या है, सॉलिड सिलेंडर में IC कितना था दोस्तों, mr स्क्वायर बाई 2 ना, mr स्क्वायर बाई 2. सो IO विल बी व्हाट, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस h किसके बराबर है, r के बराबर है, mr स्क्वायर. सो IO विल बी व्हाट, mr स्क्वायर प्लस 2 mr स्क्वायर बाई 2. IO विल बी व्हाट, 3 mr स्क्वायर बाई 2. सो दोस्तों यहाँ पे मैंने सॉलिड सिलेंडर का भी आपको बता दिया. तो दोस्तों मैं वापस आपको एक्सप्लेन कराता हूँ. जो सॉलिड सिलेंडर है उसमें जो सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होता है वो कितना होता है दोस्तों, mr स्क्वायर बाई 2. और जो डायमीटर से पास होता है दोस्तों कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 4. दोस्तों याद रखना है, ठीक है. पहले हमने रॉड का देखा, फिर हॉलो रिंग का देखा, हॉलो सिलेंडर का देखा, अब हम देख रहे हैं सॉलिड सिलेंडर का. सेंटर में कितना है, mr स्क्वायर बाई 2, डायमीटर में कितना है, mr स्क्वायर बाई 4. और टेंजेंट इन इट्स प्लेन में कितना था, टेंजेंट इन इट्स प्लेन 5 बाई 4 mr स्क्वायर. टेंजेंट टू इट्स प्लेन में कितना था, 3 बाई 2 mr स्क्वायर. दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलेस, ठीक है. 3 बाई 2 mr स्क्वायर. ओके, सो दिस वॉज आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू अ सॉलिड सिलेंडर. नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है, अब 2-3 एप्लीकेशन और बाकी है. 13 एप्लीकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए सेंटर. सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of solid cylinder, solid cylinder about an axis passing through center. ठीक है दोस्तों, सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या, सॉलिड रॉड, जो पाइप है ना, जो घर में पानी आने वाला पाइप है ना, वो हॉलो सिलेंडर है. सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या, उसको पैक कर दो, ठीक है. सॉलिड सिलेंडर, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सॉलिड रॉड. ओके, तो यहाँ पे सेंटर से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. तो ये दोस्तों हमने रॉड का देखा था ना, ये डिस्टेंस L होता है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे L बाई 2 होगा. ये भी डिस्टेंस कितना होगा इसका, L बाई 2, है कि नहीं. अब इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड कितना था, ml स्क्वायर बाई 12, है कि नहीं. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ द रॉड इज ml स्क्वायर बाई 12. आई नो दैट, ठीक है. पर यहाँ पे मैंने जो एप्लीकेशन में लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट MCQ में होता है. दैट इज mr स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 12. अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, मतलब देखो दोस्तों, ये मेरा जो सॉलिड सिलेंडर है ये सॉलिड रॉड के बराबर ही, सॉलिड रॉड के बराबर है, मतलब उसके सेंटर से पास होने वाला ml स्क्वायर बाई 12 है, वो हमें पहले ही देख लिया था. और ये नया चीज़ क्या आ गया, mr स्क्वायर बाई 4. दोस्तों mr स्क्वायर बाई 4 मतलब क्या, ये रॉड का रेडियस. अंडरस्टूड. इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज व्हाट, mr स्क्वायर बाय
4, और जो आपने पहले देखा था फर्स्ट एप्लीकेशन ml²/12 जो सेंटर से रॉड से पास हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर कितना होगा, mr²/4 प्लस ml²/12. ओके, सो नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, मूविंग ऑन टू द 14th एप्लीकेशन. थिन वॉल हॉलो स्पीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन वॉल हॉलो स्पीयर में कितना होगा, 2/3 mr². याद रखना है, ठीक है, 2/3 mr². दिस रेडियस इज r. थिन वॉल हॉलो स्पीयर मतलब आप एग्जांपल ले लो, एक स्पीयर बॉल है जो अपना क्रिकेट वाला बॉल है, वो सर्कल में है, ठीक है. स्पीयर वाला रग्बी वाला बॉल तो एलिप्स फॉर्म में है, स्पीयर वाला कोई बॉल कंसिडर करो, ठीक है. स्पीयर वाले बॉल, हाँ, एंग्री बर्ड में जो मिलता है ना, जो बच्चों लोग का खिलौना, वो बॉल कंसिडर करो, वो स्पेरिकल बॉल है. स्पेरिकल बॉल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अंदर कुछ नहीं है ना, आप उसको ओपन करते हो तो अंदर पूरा वैकेंट स्पेस होता है. दैट स्पेरिकल बॉल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्पीयर में कितना होगा, 2/3 mr². रिमेंबर दिस फॉर्मूला दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट एप्लीकेशन, 15th एप्लीकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर. मोमेंट ऑफ inertia of a uniform solid sphere. Okay, uniform solid sphere means what? It is a hollow sphere. अब सॉलिड स्पीयर मतलब क्या, वो जो एंग्री बर्ड वाला जो बॉल मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसको सॉलिड फॉर्म में कंसिडर करो, उसके अंदर वाले चीज़ें भी बहुत पैक्ड है. मतलब इस कंडीशन में सॉलिड स्पीयर, वो उसका भी रेडियस r होगा, तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr². फ्रेंड्स, ये फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं. हॉलो स्पीयर में कितना होगा, 2/3 mr², और सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर में कितना होगा, 2/5 mr². 16th एप्लीकेशन फ्रेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर अबाउट ए डायमीटर. ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर अबाउट सेंटर था फ्रेंड, मैंने बताया था सेंटर था ये करके. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर अबाउट ए डायमीटर में फ्रेंड्स कितना होगा, मतलब यही स्पीयर, सॉलिड स्पीयर जो है, इसका रेडियस है, इसके डायमीटर मतलब यहाँ से पास होने वाले में कितना होगा, यहाँ पे पास जो IZ हो रहा है वो IC के बराबर है, और IX = IY = IZ = IDA. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, IC विल बी 2/3 mr². तो ये, और जो दोस्तों ये है ना मेरा हॉलो स्पीयर थिन वॉल हॉलो स्पीयर का 2/3 mr². देखो ये जो मैंने इसमें सेंटर और डायमीटर क्यों नहीं बताया, ये डायमीटर और सेंटर दोनों जगह पे सेम होता है दोस्तों. जो हॉलो स्पीयर का जो 2/3 mr² है ना, वो डायमीटर और सेंटर में दोनों जगह पे सेम होता है. और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर अबाउट सेंटर 2/5 mr² आता है, और अबाउट से डायमीटर कितना आता है, 2/3 mr². ओके, so last two application from this chapter friends, it is very important. So application number 17, moment of inertia of uniform solid right circular cone इन सेंटर. हाँ दोस्तों, सेंटर में ये मेरा कौन है फ्रेंड्स, सॉलिड कौन है, इसमें सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रहा है, R कितना होगा, IC विल बी, प्लीज रिमेंबर, 3/10 mr². ठीक है, ये मेरा कौन से सॉलिड कौन है, जो सॉलिड राइट सर्कुलर कौन है, उसमें सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पास हो रहा है वो कितना होगा, 3/10 mr². लास्ट एप्लीकेशन फ्रॉम दिस चैप्टर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म hollow right circular cone passing through
सेंटर, ठीक है। हॉलो कोन, अभी सॉलिड कोन था ना, पैक्ड कोन था ना, अब हॉलो कोन, हॉलो कोन मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास हो रहा है वो कितना हो सकता है, वो होगा मेरा mr²/2। रिमेंबर दिस, it is very important from exam point of view. So with this we have completed with all applications involved in moment of inertia. तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते दोस्तों। सो स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। फर्स्ट एप्लीकेशन था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। वो हमने कितना कैलकुलेट किया था, IC इज इक्वल टू ml²/12, IC इज इक्वल टू ml²/12। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने जो देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट ए पॉइंट ऑफ इट्स एजेस, उसमें कितना मिला था हमें, ml²/3। Third application was moment of inertia of a thin uniform rod about a point midway between center of masses and its edges, that was 7 ml²/48. Fourth application was moment of inertia of a cube, that is 1/12 m into L² plus B². Okay. Fifth application was moment of inertia of a thin ring hollow cylinder about an perpendicular axis passing through a center, that is thin ring के लिए mr² सेंटर से पास हो रहा है। अब डायमीटर के लिए कितना आया था दोस्तों, mr²/2। mr²/2 is a moment of inertia of a thin ring passing through its diameter. Seventh application was moment of inertia of a thin ring hollow cylinder पासिंग टेंजेंट टू इट्स इन इट्स प्लेन। टेंजेंट इन इट्स प्लेन और टू इट्स प्लेन में दोस्तों फर्क है। इन इट्स प्लेन में फॉर्मूला कितना है, 3/2 mr²। सो नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग हॉलो सिलेंडर टेंजेंट टू इट्स प्लेन, उसमें फॉर्मूला कितना दिया, 2 mr²। सेंटर से दोस्तों कितना, mr², डायमीटर से कितना, mr²/2, टेंजेंट टू इट्स प्लेन से 3/2 mr² और टेंजेंट इन इट्स प्लेन से 2 mr²। Next application was friends moment of inertia of a solid cylinder about an axis passing through a center. Center से कितना है solid cylinder में, mr²/2, diameter में दोस्तों कितना आया, mr²/4। ओके, tangent इन इट्स प्लेन में दोस्तों कितना आता है, 5/4 mr², और टू इट्स प्लेन में दोस्तों कितना आया है, 3/2 mr²। सेंटर से mr²/2, डायमीटर से mr²/4, टेंजेंट टू इट्स प्लेन से 5/4 mr², सॉरी इन इट्स प्लेन से 5/4 mr² और टू इट्स प्लेन से 3/2 mr²। So next application was a moment of inertia of a solid cylinder about an axis passing through a center, that is mr²/4 plus ml²/12। थिन वॉल होलो स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर और डायमीटर में कितना है, 2/3 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में सेंटर से कितना है, 2/5 mr² और डायमीटर से कितना है, 2/3 mr²। एंड लास्ट टू एप्लीकेशन वॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज in center is IC is equal to 3/2 mr² and moment of inertia of a uniform hollow right circular cone passing through a center is mr²/2. With this we have completed the 12th standard first chapter rotational dynamics. Hope you understood all my lectures properly. If you have understood, then please like and subscribe my channel and press the bell icon so that we will start the next chapter, that is second chapter. Thank you.